Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's dive into the details. For the third consecutive year, the Indian Army will use its home-ground 105mm light field guns to deliver the ceremonial 21-gun salute at Delhi's iconic Red Fort on August 15, marking the 79th Independence Day celebrations. These indigenous guns, which first replaced the British-era 25-pounder artillery in 2023, have become a symbol of India's growing self-reliance in defense manufacturing. The guns gained prominence during Operation Sindoor, where they demonstrated exceptional efficiency and reliability. Their continued use in national ceremonies reflects India's commitment to the Make in India initiative and its push toward modernizing the armed forces with domestically produced equipment. In Uttarankhand's Chamoli district, continuous heavy rainfall has led to the collapse of the road connecting to the India-China border at two critical points near Raini village. The cave INS have severely disrupted movement along the Initi border road, a vital route for both civilians and defense personnel. Rescue teams, including the State Disaster Response Force, have evacuated over 200 stranded individuals from nearby areas such as Tamas, with 12 to 13 villages now cut off and the India Meteorological Department issuing a red alert for further downpours. Authorities are racing to restore connectivity and provide essential aid to affected communities. और ये बंटी भाई अपने न्यू रिपोर्टर मैंने आगे भेज सके इधर होगा और ये बंटी भाई अपने न्यू रिपोर्टर मैंने आगे भेज सके इधर होगा
A truck that had remained stranded on the collapsed Gambhira Bridge in Anand, Gujarat since the tragic incident on July 9, 2025, which claimed the lives of 20 people, has been successfully recovered. Due to the severely compromised structural integrity of the bridge, conventional rescue efforts were not feasible. In response, the government enlisted the Vishwakarma Group from Porbandar, operating under the Marine Emergency Response Center, renowned for their marine salvaging expertise. Over 5 days, their team of 50 to 60 professionals carried out a high-risk operation using innovative equipment such as pneumatic roller bags, hydraulic strand jacks, and horizontal cantilevers. The entire maneuver was executed from 900 meters away to avoid stressing the structure further. According to Anand District Collector Praveen Chowdhury, the team conducted the operation without charging the administration, a gesture widely appreciated for its generosity and public spirit. दुर्घटना के बाद जो एक ट्रक यहाँ पर काफ़ी दिनों से फंसा हुआ था, ये एक वहीवटी तंत्र के लिए भी बहुत चैलेंजिंग टास्क था। एंड इसके लिए क्योंकि दूसरे भी जो कंस्ट्रेंट थे, क्योंकि ब्रिज के ऊपर कोई भी लोड यूज़ नहीं किया जा सकता था, ब्रिज की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑलरेडी अफेक्टेड थी, क्वेश्चनेबल थी, तो सरकार से की तरफ से गुजरात के ही पोरबंदर के विश्वकर्मा ग्रुप की MERC को कॉन्टेक्ट किया गया, जो कि पूरे इंडिया के अंदर मरीन सैल्वेजिंग में वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं। उनकी स्किल्ड लोगों की 50 से 60 जनों की टीम पिछले 5 दिन से यहाँ पर गंभीरा ब्रिज के ऊपर ही रहते हुए पूरा रिगिंग वगैरह पूरा उन्होंने इंजीनियरिंग मॉडलिटीज़ डिसाइड की, सेट किया। एंड आज टेस्टिंग के टाइम पर ही, टेस्टिंग के साथ साथ जैसे ही टेस्टिंग सक्सेसफुल हुआ, उन्होंने ट्रक को रेस्क्यू किया है। बहुत चैलेंजिंग टास्क था, बिकॉज एक तो ब्रिज की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, सेकेंड दोनों तरफ नदी है, तो इन्होंने लोड लेने के लिए भी जो 900 मीटर दूर से पूरा पुल भी किया है, 900 मीटर दूर पूरा जैक का सेटअप किया। सिमिलरली न्यूमेटिक एयर बैग्स लगाकर आगे वाला पोर्शन जो लिफ्ट करना था ट्रक का, क्योंकि वो ऑलरेडी 5 फुट नीचे टिल्टेड था, उसको लिफ्ट करने के लिए न्यूमेटिक एयर बैग्स का उपयोग किया। सो बहुत ही, एंड पूरे ऑपरेशन का सुपरविजन और मॉनिटरिंग भी यहाँ पर 900 मीटर दूर अपने ऑफिस से एयरबोर्न ड्रोन से पूरा सुपरविजन किया। सो बहुत ही प्रोफेशनली एंड बहुत ही सुंदर तरीके से। एंड आपके थ्रू मैं सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि MERC ने ये पूरा काम इतने दिन, 5 से 6 दिन यहाँ हुए हैं, पूरी टीम 60 जनों की टीम यहाँ पे काम कर रही थी। इन्होंने ये पूरा काम एक भी रुपया चार्ज किए बगैर ये पूरा किया है, अपने वतन के प्रति प्रेम के लिए। एंड गुजरात के हैं वो, गुजरात के लिए जो प्रेम है उसके बेसिस पर उन्होंने ये पूरा किया है। ये उनकी फिलैंथ्रोपी है, उनकी फिलैंथ्रोपी को नमन। टैंकर खाली था, टैंकर HCL का था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, पर टैंकर खाली था। ये तो जिस दिन ये दुर्घटना घटित हुई थी उसी दिन ट्रक मालिक और ट्रक के ड्राइवर से पता कर लिया गया था कि टैंकर खाली था। डेड लोड था, बेसिकली पेलोड नहीं था उसमें। गंभीरा ब्रिज की दुर्घटना के बाद जो एक ट्रक यहाँ पर काफ़ी दिनों से फंसा हुआ था, ये एक वहीवटी तंत्र के लिए भी बहुत चैलेंजिंग टास्क था। एंड इसके लिए क्योंकि दूसरे भी जो कंस्ट्रेंट थे, क्योंकि ब्रिज के ऊपर कोई भी लोड यूज़ नहीं किया जा सकता था, ब्रिज की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑलरेडी अफेक्टेड थी, क्वेश्चनेबल थी, तो सरकार से की तरफ से गुजरात के ही पोरबंदर के विश्वकर्मा ग्रुप की MERC को कॉन्टेक्ट किया गया, जो कि पूरे इंडिया के अंदर मरीन सैल्वेजिंग में वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं। उनकी स्किल्ड लोगों की 50 से 60 जनों की टीम पिछले 5 दिन से यहाँ पर गंभीरा ब्रिज के ऊपर ही रहते हुए पूरा रिगिंग वगैरह पूरा उन्होंने इंजीनियरिंग मॉडलिटीज़ डिसाइड की, सेट किया। एंड आज टेस्टिंग के टाइम पर ही, टेस्टिंग के साथ साथ जैसे ही टेस्टिंग सक्सेसफुल हुआ, उन्होंने ट्रक को रेस्क्यू किया है। बहुत चैलेंजिंग टास्क था, बिकॉज एक तो ब्रिज की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, सेकेंड दोनों तरफ नदी है, तो इन्होंने लोड लेने के लिए भी जो 900 मीटर दूर से पूरा पुल भी किया है, 900 मीटर दूर पूरा जैक का सेटअप किया। सिमिलरली न्यूमेटिक एयर बैग्स लगाकर आगे वाला पोर्शन जो लिफ्ट करना था ट्रक का, क्योंकि वो ऑलरेडी Shivsena UBT MP Sanjay Raut confirmed that the India bloc will convene on August 7.
August 7 at Congress MP Rahul Gandhi's residence in Delhi to deliberate on a range of pressing national issues. Rahul stated that the agenda includes the current political climate, Prime Minister Narendra Modi's alleged false claims, the recent terror attack in Pahalgam, Operation Sindoor, and the special intensive revision of electoral rolls in Bihar. The meeting is expected to be attended by senior leaders including Uddhav Thackeray, Farooq Abdullah, Tejashwi Yadav and others from the opposition alliance. The bloc is also planning a protest march to the Election Commission office on August 8, demanding transparency and accountability in the voter revision process. This gathering marks the second formal meeting of the India bloc during the ongoing monsoon session of Parliament, as opposition parties seek to present a united front on electoral integrity and governance issues. डॉक्टर साहब, इंडिया अलायंस ब्लॉक की बहुत दिन के बाद, बहुत समय के बाद बैठक हो रही है। क्या एजेंडा है, जबकि आप जैसी पार्टी इंडिया ब्लॉक से दूर हो गई है, बाहर निकल? देखिए, आप पार्टी की एक उनकी मजबूरी है। उनको पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है, वो सत्ताधारी पार्टी है। और भी राज्यों में, गुजरात में उनको कुछ अलग से उनके मन में है। फिर भी हम पार्लियामेंट में लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़े हैं। विधानसभा चुनाव की बात बहुत जगह पर अलग होती है, क्योंकि पंजाब में आपकी सत्ता है और कांग्रेस मेन अपोजिशन है। अब दोनों पार्टी एक साथ कैसे लड़ सकती है, आप मुझे बताइए। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, पंजाब में कांग्रेस का अपना प्रभाव है और आज आपकी सत्ता है, लेकिन दोनों मिलकर बीजेपी को सत्ता पर नहीं आने दी। लेकिन मूल एजेंडा क्या है? इंडिया ब्लॉक गठबंधन की मीटिंग का एजेंडा क्या रहेगा? बहुत से एजेंडे हैं ना। देश की जो हालात है, मोदी जी का झूठ है, पहलगाम का अटैक, ऑपरेशन सिंदूर की बात है, बिहार का चुनाव है, SIR वो मुद्दा है। ऐसे बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई और खास करके एक दूसरे से मिलना, चर्चा करना, यही मकसद है। डॉक्टर साहब, इंडिया अलायंस ब्लॉक की बहुत दिन के बाद, बहुत समय के बाद बैठक हो रही है। क्या एजेंडा है, जबकि आप जैसी पार्टी इंडिया ब्लॉक से दूर हो गई है, बाहर निकल? देखिए, आप पार्टी की एक उनकी मजबूरी है। उनको पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है, वो सत्ताधारी पार्टी है। और भी राज्यों में, गुजरात में उनको कुछ अलग से उनके मन में है। फिर भी हम पार्लियामेंट में लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़े हैं। विधानसभा चुनाव की बात बहुत जगह पर अलग होती है, क्योंकि पंजाब में आपकी सत्ता है और कांग्रेस मेन अपोजिशन है। अब दोनों पार्टी एक साथ कैसे लड़ सकती है, आप मुझे बताइए। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, पंजाब में कांग्रेस का अपना प्रभाव है और आज आपकी सत्ता है, लेकिन दोनों मिलकर बीजेपी को सत्ता पर नहीं आने दी। लेकिन मूल एजेंडा क्या है? इंडिया ब्लॉक गठबंधन की मीटिंग का एजेंडा क्या रहेगा? बहुत से एजेंडे हैं ना। देश की जो हालात है, मोदी जी का झूठ है, पहलगाम का अटैक, ऑपरेशन सिंदूर की बात है, बिहार का चुनाव है, SIR वो मुद्दा है। ऐसे बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई और खास करके एक दूसरे से मिलना, चर्चा करना, यही मकसद है। डॉक्टर साहब, इंडिया अलायंस ब्लॉक की बहुत दिन के बाद, बहुत समय के बाद बैठक हो रही है। क्या एजेंडा है, जबकि Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav launched a scathing attack on the Uttar Pradesh government over its handling of the flood crisis, stating people are losing their lives due to floods at many places in UP. The state government is not providing any help. I don't know how the government is functioning there. He accused the BJP-led administration of being corrupt and failed, more focused on event management than public welfare and absent from ground relief efforts. Yadav highlighted the dire conditions in flood-hit districts, including Prayagraj and Varanasi, where rising river levels have submerged homes, disrupted healthcare, and left thousands without food, water, or shelter. He also pointed to the destruction of essential documents and the spread of waterborne diseases, demanding accountability from the state government. On the international front, Yadav responded to former US President Donald Trump's threat of imposing 25% tariffs on Indian goods over Russian oil imports. He criticized the centre's foreign policy, saying Videsh Niti hai, Videsh chali gayi.
The government should create pressure in its own favor. If the government does so, it will see all standing by it. Yadav warned that the tariff move could harm key sectors like dairy and agriculture and urged the government to defend India's economic interest amid rising global tensions. उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल और जितने पहाड़ी इलाके हैं, कई बार खबरें और देखने को मिलता है, सूचनाएं मिलती हैं कि जिस तरह की आपदा घटनाएं हो रही हैं और नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहा है। मुझे याद आ रहा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और समाजवादियों ने कभी सबसे पहले नारा दिया था कि हिमालय बचाओ, नदियां बचाओ। हमें उम्मीद है कि उसी दिशा में हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। धन्यवाद। ट्रम्प पे हम नहीं जानते, नहीं हम नहीं जानते, बहुत दिन से हम अमेरिका नहीं गए। सर दोबारा नहीं, ट्रम्प ने बोला दोबारा और ज्यादा टैरिफाइज कर देंगे 24 घंटे में। नहीं देखिए, विदेश नीति ही विदेश चली गई और जो सरकार को अपने हित में दबाव बनाना चाहिए, सरकार को बनाना चाहिए। सरकार के साथ सब इस संबंध में साथ खड़े दिखाई देंगे। सर, प्रधानमंत्री का जैसे कल एड्रेस हुआ सारे एमपी को, उस पे आपका मुझे कुछ नहीं है। यूपी के बारे में पूछना हो तो बताओ। यूपी में बाढ़ में लोगों की जान जा रही है, सरकार को कोई चिंता नहीं है, सरकार कोई मदद नहीं कर रही। मंत्री की बात नहीं माना जा रहा। नहीं, वहाँ किसी की बात नहीं मानी जा रही। पता नहीं कैसे सरकार चल रही है वहाँ। उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल और जितने पहाड़ी इलाके हैं, कई बार खबरें और देखने को मिलता है, सूचनाएं मिलती हैं कि जिस तरह की आपदा घटनाएं हो रही हैं और नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहा है। Delhi Chief Minister Rekha Gupta inaugurated a new academic block at Delhi University Social Centre School in Mohsin Nagar, built over 21 months at a cost of ₹27 crore. The 4-story building houses 21 classrooms and labs. Speaking at the event, Gupta urged collaboration between university colleges and nearby government schools to promote mentorship. She also announced the revival of the U Special Bus service for DU students, now upgraded for comfort. Education Minister Ashish Sood and DU Vice Chancellor Yogesh Singh highlighted the government's commitment to accessible quality education. साफ करके बाहर निकलिए। आप कोई कूड़ा जमीन में नहीं फेंकिए, आप डस्टबिन का यूज कीजिए। हमारे एक बेसिक लेवल पे ये सारी चीजें जो बच्चों की रगों में डाल दी जानी चाहिए, उसे डेवलप करने की आवश्यकता है। एक यूनिवर्सिटी का बच्चा जब छोटे स्कूल के बच्चे से ये बात करेगा तो उसके अंदर भी वो भावना आएगी और स्कूल के बच्चे के अंदर भी वो भावना आएगी। मैं इस मंच से चाहती हूं शिक्षा मंत्री जी, एक पूरा का पूरा लेआउट बना करके आप लाइए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे जितने कॉलेजेस हैं और जितने हमारे स्कूल हैं इंक्लूडिंग एमसीडी, उनके साथ में हर कॉलेज को जोड़ने का। और एक बार जब दिल्ली यूनिवर्सिटी आगे बढ़ जाएगी तो मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कि दिल्ली का हर कॉलेज आगे आएगा। साफ करके बाहर निकलिए। आप कोई कूड़ा जमीन में नहीं फेंकिए, आप डस्टबिन का यूज कीजिए। हमारे एक बेसिक लेवल पे ये सारी चीजें जो बच्चों की रगों में डाल दी जानी चाहिए, उसे डेवलप करने की आवश्यकता है। एक यूनिवर्सिटी का बच्चा जब छोटे स्कूल के बच्चे से ये बात करेगा तो उसके अंदर भी वो भावना आएगी और स्कूल के बच्चे के अंदर भी वो भावना आएगी। मैं इस मंच से चाहती हूं शिक्षा मंत्री जी, एक पूरा का पूरा लेआउट बना करके आप लाइए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे जितने कॉलेजेस हैं और जितने हमारे स्कूल हैं इंक्लूडिंग एमसीडी, उनके साथ में हर कॉलेज को जोड़ने का। और एक बार जब दिल्ली Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi announced that the state has successfully exceeded its tree plantation target under the Prime Minister's nationwide campaign Ek Ped Maa Ke Naam. With a total of 6.72 crore trees planted, 105% of the original goal of 6.5 crore, Odisha has earned the 4th spot.
Nationally, in terms of total trees planted, the campaign, which started on June 5 and continues through September 30, encourages people to plant trees in honor of their mothers. To commemorate Prime Minister Narendra Modi's 75th birthday on September 17, the state is preparing to plant 75 lakh trees in a single day. The Chief Minister stressed that while planting trees is important, ensuring their survival and care is equally essential, urging citizens and institutions to take active responsibility for nurturing the saplings. फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट इसी विभाग के अंदर जो सब सीनियर ऑफिसर्स जो बनखंड अधिकारी बोलते हैं राज्य स्तरीय का एक कॉन्फ्रेंस आज उसका आज लॉन्चिंग हो गया और इसी आधार पर हमने इसी सम्मेलनी में जो जंगल को लेते हुए जंगल का सुरक्षा कैसे किया जाएगा, वन्य जंतु प्राणी का सुरक्षा कैसे किया जाएगा और एफॉरेस्टेशन नया वृक्षारोपण व नया जंगल कैसे सृष्टि किया जाएगा, इसी आधार पर इसी सम्मेलनी में हम ज़्यादा से ज़्यादा आज दिन भर चर्चा चलेगा। इसी आधार पर विषय वस्तु को लेते हुए जो एक पेड़ मांग के नाम आधार पर जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा ड्राइव कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, इसी आधार पर हमको जो टारगेट भी दिया गया था करीब 6 करोड़ 50 लाख प्लांटेशन करने के लिए हमने उसको पार कर दिया और 105% आधार पर हमने 6 करोड़ 72 लाख तक पहुंचा दिया और देश में चतुर्थ स्थान हमको मिला। इसी आधार पर हमने अगले इसी साल के लिए हमने और 1 करोड़ ज़्यादा अर्थात 7.5 करोड़ हम प्लांटेशन करने के लिए हमारा योजना में हम रखे हैं और अगले जो सितंबर 17 तारीख आने वाले हैं इसी आधार पर प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है। इसी आधार पर हमने उनका जन्मदिन पर उनको एक स्वतंत्र भेंट देने के लिए हमने 75वीं जन्मदिन उनका मनाया जा रहा है। इसी आधार पर हमने 75 लाख प्लांटेशन हम करेंगे और एक अद्भुत ध्रुव परिवेश हम बनाएंगे एक दिन में करने के लिए और निश्चित रूप से उसको भी हम सफल करेंगे क्योंकि हमारा हर दिन का टारगेट 10 लाख से एवरेज में हम जा रहे हैं और वो दिन 75 लाख हम करेंगे, निश्चित रूप से हम कर सकेंगे। मुख्य विषय बिंदु है कि जो वन सुरक्षा और वन्य प्राणी का सुरक्षा आज जो जैसे इसी आधार पर हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, इसी आधार पर हमने बहुत सारी कोशिश की और हमारा अधिकारी लोग ने अपना जान को बाजी लगाते हुए काम कर रहे हैं। तो बंदूक के सामने आ जाते हैं तो जान भी चल जा रहा है, लेकिन वो काम पर वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आज 500 से ज़्यादा बंदूक हमने सीज किए सिमरीपाल इलाका में। आज हमारा जो टाइगर का संख्या बढ़ गया, आज वन्य जंतु का सुरक्षा हमने कर पा रहे हैं और उसको डेन फॉरेस्ट करने में हम और काफ़ी 2 कदम आगे भी बढ़ रहे हैं और इसी आधार पर इसी सम्मेलन की आज बहुत ज़रूरत था। इसी आधार फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट इसी विभाग के अंदर जो सब सीनियर Chief Minister Mamata Banerjee visited the flood-affected regions of Gartal and Arambagh on August 5, 2025, following severe inundation caused by incessant rainfall and the Damodar Valley Corporation's release of water. During her visit, she interacted with the displaced residents, served meals at relief camps, and laid the foundation stone for new infrastructure at Ramakrishna Math in Kamarpukar. Banerjee announced Rs 500 crore for the Gartal master plan and criticized the central government for withholding flood relief funds. She reaffirmed her government's commitment to supporting affected communities despite financial constraints. वंदे
Ahmedabad hosted the Sanskrit Gaurav Yatra to mark the beginning of a World Sanskrit Day celebrations organized by the Gujarat State Sanskrit Board at Prabhat Chowk. The event features students, scholars and educators showcasing Sanskrit's cultural and literary legacy through slogans, songs and exhibitions. Children dressed in traditional attire added festive charm to the procession. The Yatra launched a 3-day celebration including Sanskrit Sambhashan Divas and Sanskrit Sahitya Divas, aimed at promoting Sanskrit under the National Education Policy 2020. Chairman Himanjay Paliwal called Sanskrit the mother of all Indian languages and a symbol of our philosophy and culture, emphasizing the aim to revive, protect and promote the language. The Yatra launched a 3-day celebration including Sanskrit Sambhashan Divas and Sanskrit Sahitya Divas. मैं हिमांजय पालीवाल, चेयरमैन गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड गुजरात सरकार। आज हम संस्कृत सप्ताह के प्रथम दिवस पर सब एकत्रित हुए हैं। पूरे भारत सरकार के द्वारा 1970 में विश्व संस्कृत दिवस अर्थात श्रावण पूर्णिमा का दिवस संस्कृत दिवस के रूप में घोषित है। तो वो विश्व संस्कृत दिवस हम पूरे देश में विभिन्न सरकारों, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से उसका आचरण होता है। गुजरात सरकार ने भी प्रथम समय यह निश्चित किया है कि हम भी गुजरात सरकार के द्वारा जो सभी भाषाओं की जननी है, जो पूरे देश को एक सूत्रता में बांधती है, जो हमारे दर्शन और संस्कृति का प्रतीक है, उस संस्कृत भाषा को पुनर्जीवित करने के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए हम इस संस्कृत सप्ताह की उजवणी करेंगे। इसलिए गुजरात सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री के नेतृत्व में और हमारे जो शिक्षण मंत्री है श्री कुबेर भाई डिंडोर महोदय और श्री माननीय पानसेरिया महोदय, उनके मार्गदर्शन में गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड के द्वारा संस्कृत सप्ताह का आचरण किया जा रहा है। इसमें विश्व संस्कृत दिवस से 3 दिन पहले यानी श्रावण पूर्णिमा से 3 दिवस पहले और 3 दिवस बाद यानी संस्कृत सप्ताह जो है आज प्रथम दिन है उसका, और पूरे गुजरात में सभी जिलों में वहीवट तंत्र के द्वारा, सभी सामाजिक संस्थाओं के द्वारा संस्कृत सप्ताह का आचरण किया जा रहा है। विभिन्न महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संस्कृत गौरव यात्रा, संस्कृत संभाषण दिवस और विभिन्न प्रकार के उत्सव उसमें 7 दिन पर मनाने का निश्चय किया गया है। The annual Tuya Panimaya Mata Church Festival concluded on August 5, 2025 with the grand celebration of the Mother of the Snow held at the historic Panimaya Mata Cathedral. The 11-day festival began on July 26 and saw lakhs of devotees participating in religious processions, special masses and cultural events. The final day featured the iconic Golden Chariot procession, drawing pilgrims from across the region in recognition of the festival's significance. The Thoothukudi district administration declared a local holiday on August 5 with schools, colleges and government offices closed for the day. In Tiruchirappalli, Tamil Nadu, artisans and vendors are preparing for Vinayak Chaturthi by crafting eco-friendly Ganesh idols made from natural clay and biodegradable materials. With growing awareness about environmental sustainability, many devotees are opting for idols that dissolve easily in water, ensuring a pollution-free Visarjan. These idols, often accompanied by hand-painted diyas and traditional decorations, are gaining popularity despite being priced higher than conventional plaster of Paris models. The shift reflects a broader trend across India, where communities are embracing greener celebrations in line with cultural values and ecological responsibility.
This is the wrap of the Inside News. For more updates, stay tuned to CVR News English.